Hello students, good morning to you. Me Gauri Shankar Baitha, and today is my 43rd online lecture video class. In the previous class I told you about the onset of the monsoon. Now today I will tell you about the withdrawal of the monsoon. How do this monsoon withdraw from the northern plains? Now listen, withdrawal of the retreat of the monsoon is more gradual process. The withdrawal of the monsoon begins in the northwestern states of India by early September. यानी कि मानसून का जो प्रस्थान उत्तरी मैदान से कब होता है? इन द अर्ली सितंबर. सितंबर जब आता है तब जो है मानसून यहाँ से प्रस्थान करना शुरू कर देती है. एंड बाय द मिड अक्टूबर इट withdraws completely from the northern half of the peninsula. नॉर्दर्न हाफ पेनिनसुला का मतलब हो गया यहाँ पे गुजरात से लेकर के जो आपका ट्रॉपिकल कैंसर जो लाइन है वहाँ से आधे भाग से ये दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान कर जाती है. ये बाय द मिड ऑफ अक्टूबर द विड्रॉल फ्रॉम द साउदर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला इज फेयरली रैपिड. जब ये ट्रॉपिकल कैंसर पार करती है तो काफ़ी तेज़ी में नीचे की ओर जाती है ये. एंड बाय द अर्ली दिसंबर द मानसून हैज़ विड्रॉन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री. और दिसंबर तक अर्ली दिसंबर तक जो है ये हमारे देश से बिल्कुल बाहर निकल जाती है मानसून. नाउ सी द आइलैंड receives the very first monsoon shower progressively from south to north. ध्यान सुनिए, ये चीज़ तो माइंड करने की चीज़ है. जब मानसून का आगमन होता है तब जो है सबसे पहले मानसून कहाँ पर कदम रखती है? इन द आइलैंड्स. Islands mean to say that is the Andaman Nicobar Islands, and it goes from south to north from the last week of April to the first week of May. अप्रैल के लास्ट वीक से मई के फर्स्ट वीक के बीच में ये आइलैंड तक इसका आगमन हो जाता है. The withdrawal takes place progressively from north to south from the first week of the December to the first week of January. और इसका प्रस्थान जो है जो मानसून हमारे देश से निकल जाती है कब? ये लास्ट वीक ऑफ दिसंबर से फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के बीच में हमारे देश से बाहर चली जाती है मानसून. मैंने आपको दोनों बताया कि इसका ऑनसेट कब होता है और विड्रॉल कब होता है. Now by this time the rest of the country is already under the influence of the winter monsoon. जब ये निकलता है तो हमारे देश के उत्तरी भारत में पूरी तरह से ठंडे का प्रकोप रहता है. Okay, now that I told you about the onset and withdrawal of the monsoon. Now the next topic is about the season. You know that seasons are mainly of three types. That is summer, winter and rainy. Rainy means that the monsoon season. And also we know that India has a what type climate? India has a monsoon type of climate that is characterized by the distinct seasonal pattern. The weather condition greatly change from one season to the others. जानते हैं कि मौसम जो है ये हमेशा परिवर्तित होती रहती है एक सीजन से दूसरे सीजन में. दिस चेंजेस आर पर्टिकुलर नोटिसेबल इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री. जो मौसम परिवर्तन होते हैं इसका हम लोग देश के अंदरूनी भागों में हम लोग इसका परिवर्तन देख सकते हैं. द कोस्टल एरियाज डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन इन द टेम्परेचर दो देयर इज़ the variation temperature, though there is variation in the rainfall pattern also.
लेकिन जितने भी तटीय मैदानी इलाके हैं वहाँ पे इसका परिवर्तन देखने को बहुत कम मिलता है, क्योंकि इसका वेरिएशन और रेनफॉल पैटर्न देख सकते हैं कि वो हम जानते हैं कि वहाँ पे ना गर्मियों में अधिक गर्मी होती है ना ठंडियों में अधिक ठंडी होती है। देन यू टेल मी हाउ मेनी सीजन्स आर एक्सप्रेस्ड इन योर प्लेस by the book. 4 main seasons are identified in India. That is the cold weather season, the hot weather seasons, advancing monsoon and a retreating monsoon, as per your book. Now see, the cold weather season, that is the winter season. The cold weather season begins from November in the northern India and till up to फरवरी। हम जानते हैं कि ठंडी का जो मौसम है ये इसकी शुरुआत जो है उत्तरी भारत में नवंबर से लेकर के फरवरी तक रहता है। दिस इज़ द कोल्ड वेदर सीजन्स इन नॉर्दर्न इंडिया फ्रॉम नवंबर टू फरवरी, in which the December and January is the coldest months in the northern part of the country. It means the temperature decreases from so much in the north. The average temperature of the Chennai in the eastern coast is between 24 degree to 25 degree, while northern plains it ranges about the 10 degree Celsius and 15 degree Celsius. हम तापमान में भी परिवर्तन देख सकते हैं, जैसे कि जो ईस्टर्न कोस्ट है पूर्वी तटीय मैदानों में उस समय ठंडी के मौसम में वहाँ का तापमान 24 से 25 डिग्री रहता है, और वही नॉर्दर्न इंडिया में तापमान जो है 10 से 15 डिग्री के बीच पाए जाते हैं। इसमें हम लोग भी इसमें काउंट होते हैं। डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड, दिन गर्म होता है और रात ठंडी होती है। फ्रॉस्ट इज द कॉमन इन द hilly areas and the higher slopes, which in the slopes of the Himalayas that is experience the snowfall. हम देखते हैं कि फ्रॉस्ट जो होता है, जो ओले पड़ते हैं या बर्फ़ गिरते हैं, स्नो गिरते हैं, ये चीज़ जो है कॉमन देखने को मिलती है हमको पहाड़ी की ढालों पर, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, इन एरिया में ये कॉमन चीज़ होती है उससे ठंडी के मौसम में। During this season, the northern winds prevail over the country. इस मौसम में हम देखते हैं कि उत्तरी भारत में ये ठंडी हवा का प्रकोप पूरे उत्तरी भारत में जारी रहता है। And the weather, that is the wind, blows from land to sea and hence for the most of the countries. Some of these winds, they blow from sea to land also. दिन के समय जिसको बोलते हैं हम लोग लैंड ब्रिज, सी ब्रिज। सी ब्रिज ब्लो इन द डे टाइम एंड लैंड ब्रिज ब्लो इन द ड्यूरिंग द नाइट। Okay, now see, in the northern part of the country, high pressure regions develops. हम देखते हैं कि उत्तरी भारत में उस समय जो है प्रेशर बहुत हाई होता है और कोस्टल एरियाज में प्रेशर लो होते हैं। एंड वी नो दैट विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर्स। दे फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज़ ड्राई सीजन। बाकी अन्य भागों में मौसम जो है शुष्क होता है। एंड द रेनफॉल्स ऑकर ऑन द तमिलनाडु कोस्ट बाय दिस विंड्स। और उस समय नवंबर दिसंबर में उस समय हम देखते हैं कि वर्षा जो है सॉदर्न पार्ट में सबसे अधिक होता है। दैट इज द टाइम ऑफ द रिट्रीटिंग ऑफ द मानसून। Okay students, today it is up to cold weather seasons. Now next I will tell you about the hot weather seasons, that is summer seasons, in the next class. Okay, thank you.